Yes. Yes, anyone? When we will say that an object is at rest or in motion, what are the conditions by which we are going to tell that whether an object is at rest or in motion? कैसे बताएंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में? Yes. Tell me. See, when an object. Ma'am, when object is kept. When object is. Yes, ma'am. When an object kept at rest, the object will not going to move from its place. Yes, see, we call an object at rest if it do not change continuously its place with time or position with time. A body is said to be in motion when its position change continuously with respect to the stationary object taken as a reference point. कोई stationary object को अगर हम लोग reference point में ले ले, and if some object is continuously changing its place with respect to that stationary object which is at rest, we call that object to be in motion. हम लोग कब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन जो है कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ठीक है? देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. You people have learned that we say an object to be in motion if it continuously changes with position with reference to with in a comparison with a reference point. Means if we are comparing it with a reference point, say a stationary point we people have taken, and from that reference we are observing that whether the body is in motion or not. If it is continuously changing its position, it means it is in motion. But if it is not changing with its position with the reference point, we call it to be at rest. Here see, the reference point which I have taken is the tree. ये जो ट्री है वो रेफरेंस पॉइंट के तौर पे मैंने लिया है, बिकॉज दैट ट्री इज फिक्स टू अ प्लेस. ट्री जो है फिक्स है एक प्लेस पे, वो मूव नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लिए और उस रेफरेंस पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन और नॉट. So here the object is changing its position. It means what? The object is in motion. तब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा मोशन में है. नाउ इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? यस, टेल मी, इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, see, simply I am showing to you people that when we will say an object to be in motion or when we will see we will call an object to be at rest. So फिर if we are saying that the object is in motion, what we are doing? We are simply taking the reference point. This reference point will be some stationary object. So here I have taken the reference point of this tree because tree is fixed to a place. ये जो ट्री है इस प्लेस पे फिक्स है, तो इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ले लिया है, जो कि मेरा कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए. जब भी रेफरेंस पॉइंट लेंगे कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो यहाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के तौर पे मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको लिया हमने. ये रेफरेंस पॉइंट हमने ट्री को कंसीडर कर लिया. नाउ we are seeing that with respect to this reference point, our object is moving in this direction. If this is our object, it is first of all moving towards point A, then it is moving towards point B. It means it is continuously changing its position. It means this particular object is in motion. ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मोशन में है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. ओके मैम, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट हियर आई हैव टेकन एज ट्री. एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट you can take it as reference point. जैसे मान लो कि हमने रेफरेंस पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. जैसे अगर हमको ट्रेवल करना है टुवर्ड्स पटना, ठीक है, if I am going towards Patna and whether my train is at rest or in motion,
how I am going to say, if it is at Gaya station, तो Gaya station I am taking it as the reference point, कि ये जो गया स्टेशन है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अगर गया से आगे जो है, गया स्टेशन में जिस प्लेटफॉर्म पे मेरा गाड़ी है उसको मैंने अगर रेफरेंस पॉइंट मान लिया और मेरा गाड़ी वहीं पर खड़ा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन अगर गया स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट माने हैं और मेरा प्लेटफॉर्म को, और मेरा ट्रेन जो है वो मोशन में, मतलब कॉन्टिन्यूअसली उस रेफरेंस पॉइंट की से कंपेयर करने पे मेरा पोजीशन जो है कॉन्टिन्यूअसली अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माय ट्रेन इज इन मोशन। मेरा ट्रेन क्या है, मोशन में है, इसका मतलब। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, वी आर सिंपली कंपेयरिंग वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। अगर ऑब्जेक्ट जो कि okay, see the example of displacement and distance, how to find out, कैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। See, one example I am giving, एक एग्जांपल जो है हम शो कर रहे हैं। सपोज अ पर्सन इज वॉकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स दिस पॉइंट, सो दिस इज द, in this way the person is walking from A to B, again that person return to this C, okay, and then he is going back to the final position। एक पर्सन जो है वो A से स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचा, B तक। ठीक है, B पॉइंट A से पॉइंट B तक गया और फिर पॉइंट B से पॉइंट C तक वो आया। ठीक है, ये हमारा जो है ये पूरा मींस यहां से चलना शुरू किया, यहां गया और फिर यहां आया। से कंसीडर दिस एज 5, ओके, से 5 किलोमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर। अगर हम लोग 5 किलोमीटर डिस्टेंस इसको कंसीडर किए और इसको हमने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कंसीडर किया, देन टेल मी what is the distance traveled by that particular person and what is the actual displacement, कितने डिस्टेंस को उस पर्सन ने कवर अप किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। yes, then you come to know about distance and displacement। yes, distance और displacement ये दोनों टर्म तुम लोगों को तब क्लियर हो जाएंगे। मैम पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मैम पाइथागोरस निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकालो ना इजी वे में। पाइथागोरस से निकालोगे तो निकल जाएगा, इजी वे में इसको करो। केवल हम लोग दो टर्म का डिफरेंस समझ रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस को कैसे क्या करेंगे और डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे। तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, द पर्सन्स इनिशियल पोजीशन, दैट इज द पोजीशन ए। इस पोजीशन से वो पर्सन चलना शुरू किया फ्रॉम ए टू बी। So here I am writing that the person starts from A and he reaches to B. So A से B तक का distance हो गया 5 किलोमीटर। ठीक, again that person from B towards C, यानी BC जो distance है वो है 3 किलोमीटर। It means 5 plus 3 that equal to 8 kilometer total distance that person traveled। But if we are going to find out the displacement, तो displacement होता है initial और फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसको निकालो। तो अब निकालो इसको, जो थ्योरम बोल रहे हो उससे। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, टेल मी। दोनों होता है। Very good, very good. You people are correctly answering. When we are saying the scalar quantity, अगर हम लोग scalar quantity को कह रहे हैं, ठीक है, scalar quantity means where magnitude is only there but no any direction is mentioned। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी है और वहां जो है डायरेक्शन क्या होगा, स्पेसिफाइड। वहां पर जो है डायरेक्शन भी रहेगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो in that when we are talking about the distance, it is a scalar quantity because it has only magnitude but no specified direction। But when we are talking about the displacement, it is a vector quantity, it has magnitude as well as direction, दोनों रहेगा इसके पास, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या दोनों? हम लोग कह रहे हैं डिस्टेंस, हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब क्या है? यस, And the actual length part is called the distance.
दैट इज द डिस्टेंस। मैम मैम डिस्टेंस का होता है The shortest Distance distance है between the scalar 2 points और is called displacement. डिस्प्लेस है वेक्टर। Yes, that you are saying the right. कैसे justify करोगे? The sentence is the distance traveled by a moving body cannot be zero. अगर हम लोग distance की बात कर रहे हैं moving body का, तो distance traveled by a moving body cannot be zero. वो zero नहीं हो सकता. But the final displacement of a moving body can be zero. इसको प्रूव कर सकते हो? अगर मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, जबकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। यस, एनी एग्जांपल कैन यू गिव? एनी एग्जांपल? कोई भी एग्जांपल दे सकते हो? दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? We are saying that the Yes. distance traveled by moving body cannot be zero. It means when the object is moving, it means the object is continuously changing the position from one, it is continuously changing its place with respect to reference object. So it cannot be zero. अगर continuously position को change कर रहा है object जो है, इसका मतलब कि उसका distance covered जो है zero तो नहीं हो सकता है. Am I right? अगर कोई ऑब्जेक्ट, Yes, ma'am. yes, see the example. If I am talking about any object, say I am talking about a object, a vehicle which is at position A. यहाँ पर अगर हम लोग एक vehicle को ले रहे हैं position A में, and this is our reference point. Here some house or building is there. This is the reference point. So our object is, it is changing its position. Means it is covering the distance, it is changing its position. तो अगर ये मेरा मूविंग बॉडी जो है पोजीशन चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड तो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है। कैसे? सपोज अगर ये यहाँ से स्टार्ट किया, इफ दिस मूविंग बॉडी, if this body is started movement from this point, okay, if a car is moving towards this side, then distance covered by the car will be not zero. Distance covered अगर हम लोग निकालेंगे तो वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमारा कार सीधे ऐसे मूव करते जा रहा है। लेकिन सपोज दिस इज द A position and this is the B position, our car move towards the point B and then again it back to the position A. What will be the displacement? What will be the displacement? Zero. So जीरो। यस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से बैक आ गए फाइनल पोजीशन पे, ठीक है, इनिशियल पोजीशन। तो ये सेंटेंस यही कह रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, यस, ऑन ए सर्किल, वेरी गुड, आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन ऑन ए सर्किल, अगेन द ऑब्जेक्ट बैक इनटू दैट पोजीशन। सी, इफ हियर वी आर ड्राइंग ए सर्किल, इफ दिस इज द पोजीशन ए, अगर ये पोजीशन है A है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, तो ये इनिशियल पोजीशन मेरा ये था और वापस ये ऑब्जेक्ट ये पूरा गोल घूम के वापस यहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दैट इज, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन, ओके, इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो इट विल बी जीरो। यस इशू, करेक्टली यू आर आंसरिंग। तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, ठीक है। तो इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर हम लोग देख रहे हैं तो दैट विल नॉट बी जीरो।